today, bringing my focus back into one place, which is the sound of the mantra. You know, I we are just waiting for 2-3 minutes to Haresh bhai to come. Kalpesh bhai, are you able to? Yes, I'm here only. Okay. Vijay bhai, Kalpesh bhai, we are just waiting for Haresh bhai to join us. Just had a word with them. He is joining within a couple of minutes. So once he is in, we'll start the session. Maybe within 2 or 3 minutes, he'll be over here. Sure. We'll go ahead accordingly. Okay, sir. Okay. Thank you so much. By the time Jai bhai, I'll introduce our both association committee to you. Is Jai bhai audible? Jai bhai, we have Mr. Vijay Mukhi with us. He is the president of area group, and we have a Kalpesh Vallia with us. He is the secretary of a RIC association. Thank you, Varun bhai, for introducing. I suppose Haresh bhai has just joined us. Is Haresh bhai able to join? Priyank?
Priyank, can you unmute Haresh bhai? Nikun Sanghvi is there. I suppose Haresh bhai or Nikunj, either of them must be there on your panel. Yes, yes. Hello. Hello. Yes, Haresh bhai, welcome. How are you? बस फाइन थैंक यू. आप सब कैसे हैं? All good, sir. अच्छा आवाज आ रहा है ना अभी? हाँ. Okay, Haresh thank you. bhai is audible. So just sir, we were waiting for you. तुम्हारी wait कर ही रहा था. जी जी. So Haresh bhai just introduce अपना बेव association ना secretary and president ने. We have area group with us. Area group માંથી president sir છે વિજય મુખી sir. Okay. એ આપણી સાથે છે અહીંયા available. Okay. અને આપણા કાંદીવલી એસ્ટેટ એજન્ટ એસોસિએશન રીક માંથી એમના સેક્રેટરી કલ્પેશ વલિયા છે આપણી હારે. जी અને જે આપણા આજના સ્પીકર છે મોટિવેશનલ સ્પીકર જય વસાવડા जी. એ બી આપણી સાથે છે. Hello. So I'll just introduce Haresh bhai with everyone. So now we'll start with the session. First of all, I'll welcome all of them. And thanks all the participants. We have more than 300 participants who are already on the board. Very well. Thank you everyone to come and join over here. Now the situation is in there. We are all in the war. We have only two options available with us. One, we can save ourselves, and other is only to save ourselves. In this situation, we are over here. જ્યાં આપણી dynamic presidents ને એ લોકો આપણી હારે છે. I'll request Vijay sir to say something, a few words. Then the Kalpesh Walia to say something with us. Thank you, Varun bhai. I am thankful to M Space for hosting today's webinar, which is about the business Z plan for the real estate as of today. I am really honored that our chief guest for today, Mr. Haresh Sanghvi, joined us. Thank you. I give greeting from area group to all of you, and on top of that, we have one of the best trainer and business coach, Mr. Jay Vasavda, who will be showing us the way how we can fight in today's time and survive the business, survive with the family, and survive with the real estate fraternity. So we together can come out of this crucial time and hand in hand go into a better future. Thank you. I can request Mr. Kalpesh Walia to share 2-3 minutes with his thoughts. So, Kalpesh bhai, are you audible? wait. Yes, I'm audible. I'm okay? Yeah. I'm audible, sir? Okay. Yes, I Kalpesh think bhai. બધા અત્યારે એક નવા ટાઈમને એન્જોય કરી રહ્યા છો, નહીં કે એને ટેન્સમાં આપણે કાઢી રહ્યા છું. હરીશભાઈ આઈ થિંક એ વાતથી એગ્રી હશે. હરીશભાઈ जी. કરો છો ને સર? Yes, yes, yes. હા, આપણે કોઈ બી વસ્તુને પ્રોબ્લેમ તરીકે ગણીએ ને તો એ પ્રોબ્લેમ છે, અને એને ઓપોર્ચ્યુનિટી ગણીએ તો એ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. Of course. અત્યારે આપણે ઘણા બધા સારા સ્પીકર્સ અને ઘણા બધા સાથે એટલું સરસ ઇન્ટરેક્શન કર્યું છે જે આઈ થિંક છેલ્લા 10 વર્ષ નથી કર્યું કોઈએ. Perfect. એટલે એક મહિનાની અંદર આપણે એટલું બધું મેળવ્યું છે કે જેના 10 થી 15 વર્ષમાં આપણે કોઈ રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટે નથી મેળવ્યું. બરાબર છે. હવે આખું સિનેરિયો ચેન્જ થઈ ગયો છે, અને એ નવા સિનેરિયો પ્રમાણે આપણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ અને એની માટે શું કરવું જોઈએ એનું આપણને જય વસાવડિયા આપણને એનું નોલેજ આપશે. અને સાથે સાથે હરેશભાઈ સંઘવીને હું વેલકમ કરું છું કે આમાં આવીને આપણી જે આ મીટની શોભા વધારી, વેબિનારની શોભા વધારી, અને થેન્ક્સ ટુ એમ સ્પેસ કે જે આપણા રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ એસોસિએશન ઓફ કાંદીવલી ને આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી એની સાથે એસોસિએટ થવા માટે. હું કલ્પેશ વલિયા, સેક્રેટરી ઓફ રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ એસોસિએશન, all the members and all the real estate fraternity ને વેલકમ કરું છું. થેન્ક યુ. Thank you, Kalpesh bhai. ભાઈ sorry. I'll just થોડું brief આપી દઉં sir હરેશભાઈ માટે. People already knows Haresh bhai very well.
પણ કદાચ કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ must be not knowing, Haresbhai is the chairman of Veena Developer, one of the finest real estate company in Mumbai, who has a presence in Mumbai, rather Kandivali, Borivali, Andheri, Central માં ચેમ્બુર, પાલઘર અત્યારે એમનો one of the finest and biggest project ચાલી રહ્યો છે. વસઈમાં ઘણા પ્રોજેક્ટ છે. So we have the one of the industry's best developer with us as a guest. Thank you, Haresbhai, for joining us. Thank you. Hello. Thank you. Haresbhai, just 2-3 words for you. કદાચ બધાને જ ખબર હશે કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક હીરો હોય, like every industry has their own hero and a motivational story. Haresbhai is more like a hero for our industry. He has started his journey as a channel partner and now the one of the successful developer. He is none other than CMD of Veena Developer. I'll request him to share his some inspirational word and also guide us how to do business in future. Okay. First of all, एरिया ग्रुप के सारे भाइयों को मेरा नमस्कार और खास करके जय वसावड़ा स्पेशली आज अहमदाबाद से आप लोग को सबको कुछ नई गाइडलाइन करेंगे। लेकिन आज की हालात में सबसे पहले तो कोरोना वायरस आने के बाद में 2 महीने से सारे लोग घर पे है। कई सालों से अपन बोलते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। शायद कोई कम ऐसा आदमी होगा जिसने ऐसा नहीं बोला मेरे पास टाइम नहीं है। सारे लोग बोलते थे मेरे पास टाइम नहीं है और कुदरत ने सब सुन लिया परफेक्ट और उसने पूरा टाइम नहीं दे दिया कि अभी टाइम ही टाइम ले लो, आप पूरा टाइम ले लो। तो सबसे पहले तो जो कुदरत ने टाइम दिया है उसका अपन अच्छी तरह एंजॉय करें, उसमें से कहीं नई चीज नॉलेज में लेवे और आगे जाके फ्यूचर में बहुत सारी चेंज आने वाली है जो पिछले 100 साल में किसी ने सोचा नहीं था। पहले के जमाने में लोग बोलते थे घर एक मंदिर और आज उसका एहसास हो गया कि घर रियल में एक मंदिर है। जब 4 दीवार के अंदर लोग रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो आज कितना हैप्पीनेस लगते हैं। और आप सारे लोग और हम यही काम कर रहे हैं कि लोगों को घर देने का ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज तक की बात में लोग बहुत घबराए हुए हैं कि अभी क्या होगा, क्या होने वाला है। हमेशा कभी भी जो डार्क नाइट होती है ना, उसके बाद में सुबह अच्छी होती है और उसके बाद में दिन भी अच्छा ही होता है। तो कोई खास घबराने का कोई कारण नहीं है। एक पीरियड आ गया है, हाँ, लेकिन जरूर उसमें चेंजिंग बहुत सारी लानी है। अभी जो पहले अपन 25-50 साल में जो काम कर चुके हैं, लेकिन आने वाले दिन में काफी चेंज आ जाएगा। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है आज अपने वो समझ में आया। 25-50 साल में कभी जूम का यूज नहीं किया था अपन, एक साथ में 50-100-200 लोग एक साथ में बात कर लेंगे, एक साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आज ये टेक्नोलॉजी का यूज करने का नॉलेज अपने पास आया। यही नॉलेज आगे जाके बिजनेस में यूज करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी की कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी और रियल एस्टेट में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। साथ साथ में आप सबको ऐसा फियर है कि भाई मार्केट में बहुत रेट कम हो जाएगा, लोग बायर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरा कुछ अलग सोचना है। ऐसा नहीं है। जैसा अपना प्राइम मिनिस्टर ने सोचा था कि 2022 में 5 करोड़ 20 लाख फ्लैट देना था, तो हकीकत में बंबई में आज जो लोग घर पे नहीं है, जिसके पास घर नहीं है पक्का, कमाई अच्छी करते थे लेकिन घर नहीं लिया था, कभी सोचा ही नहीं था घर लेना, उसको आज पता चला कि घर की वैल्यू कितनी है। और आने वाले दिन में बंबई में घर की डिमांड जरूर रहने वाली है, उसमें कुछ कमी आने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है, लग्जरियस फ्लैट की डिमांड शायद कम हो जाएगी। जो पहले लग्जरियस फ्लैट की डिमांड थी वो शायद अभी 10% या 20% रहेगी, लेकिन 80% एफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड रहने वाली है। और बंबई को छोड़ के बंबई के आजू बाजू के एरिया में जो बॉम्बे रीजन MMR एरिया है, उसमें आज भी 12 लाख से लेके 25 लाख में लोगों को फ्लैट मिल रहे हैं। और लोगों को इकोनॉमिक काम तो करना ही है, लोगों को बंबई में आना है, यहाँ ही कमाई करनी है।
आगे जाके जैसा कि गडकरी साहब ने भी, आपने सुना होगा कि उसने बताया कि एफोर्डेबल हाउसिंग और इकोनॉमिक हाउसिंग जो भी 300 फुट, 350 फुट, 400 फुट की डिमांड जरूर रहने वाली है और वो सेल होने वाला ही है। साथ साथ में जो अभी पहले इजीली जो बिजनेस हो जाता था सबको कि भाई 1 या 2 बार बात किया और फ्लैट बिक गया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो मेहनत भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पड़ेगा, साथ साथ में आपको डिजिटल, खास करके डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग के साथ में भी काम करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस तो चलेगा ही। हाँ, पहले था कि भाई 5 करोड़ का फ्लैट, 10 करोड़ का फ्लैट, 4 करोड़ का फ्लैट, 3 करोड़ का फ्लैट, वो डिमांड शायद 2 साल कम हो जाएगी। 2 साल के बाद में वापस लोग नई उम्मीद में पैसा कमाना चालू कर देंगे तो उसमें भी आएंगे। लेकिन आज के दिन में बंबई में 50 लाख से 1 करोड़ के फ्लैट बिकना ही बिकना है। और बॉम्बे के बाद जहां एमएमआर का रीजन है, जैसे कि विरार छोड़ के, जहां पे यहाँ पे डोंबिवली, कल्याण छोड़ के, इस एरिया में भी जो 15 लाख से 25 लाख का फ्लैट है उसकी डिमांड जरूर रहने वाली है। और ऐसा भी हमने हमारे प्रोजेक्ट पालघर में चालू किया थे। हालांकि 18 मार्च को चालू किया और 22 मार्च को बंद हो गया। 4 दिन के बाद में हमको लगा था कभी क्या होगा, लेकिन हमारे सेल्स वाले ने डिजिटल मार्केटिंग का यूज किया, आज की टेक्नोलॉजी का यूज किया और ऑनलाइन बुकिंग चालू किया। तो करीबन 2000 फ्लैट का बुकिंग हमारे पास एप्लीकेशन ऑफिशियली आ गया। और हम तो गवर्नमेंट के साथ टाइप है, माड़ा के साथ में ऑफिशियली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम काम कर रहे हैं और माड़ा के बैनर पे हम लोग हमारा नाम से बिजनेस कर रहे हैं। तो आज के दिन में ऑफिस बंद होने के बाद में 25 मार्च को छोड़ के आज तक में 2000 एप्लीकेशन हमारे पास आई है। इसका मतलब ये हो गया कि लोगों की रिक्वायरमेंट तो है, लोगों को घर तो चाहिए, लेकिन वो घर अभी एक बजट वाला फ्लैट चाहिए, एक लिमिट के अंदर चाहिए। बॉम्बे में आपको बेचना है तो 50 लाख से 75 लाख, 80 लाख, 90 लाख, करोड़ रुपए के अंदर फ्लैट चलेगा। जैसा कि सबब में, बॉम्बे में सबब बोल रहा हूं मैं, आपको बोल रहा हूँ मलाड, कांदीवली, बोरीवली, दहीसर और सेंट्रल लाइन में, थाना से आगे के एरिया में। लेकिन बाकी के एरिया में 15 से 25 लाख में फ्लैट जहां जहां मिलेगा वहां जरूर बुकिंग मिलने वाला है। और उसका एक्सपीरियंस में प्रैक्टिकल आज जो मिला है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। कोई सुनी सुनाई बात या मतलब दूसरे ने बोला और मैंने कह दिया, ऐसी बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और आप लोग को भी काम जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज करो, डिजिटल मार्केटिंग का यूज करो, तो 100% सक्सेस होना ही है, ऐसा मैं मान रहा हूं। और ये वक्त तो अच्छा दिया कि हर आदमी को अपना बारे में सोचने का मौका दिया। 2 महीने के अंदर हर आदमी ने अपना ऑब्जर्वेशन इनसाइड से किया, जो अपने आज तक कभी मौका नहीं मिला। तो उसके बाद में बहुत कुछ चेंजिंग आएगा। लोग नई क्रांतिकारी विचार लेके आएंगे, नई सोच लेके आएंगे, नए मार्केटिंग का आइडिया लेके आएंगे, बहुत कुछ चेंज आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ये 2 महीने से पूरी दुनिया हिल जाने वाली है। हाँ, जरूर लोगों का नफा कम हो जाएगा, कम मार्जिन में काम करना पड़ेगा। अभी पहले जैसा मार्जिन नहीं रहेगा, 10% में रहना पड़ेगा, लेकिन काम तो होना ही है। दूसरी बात, आज का एक सर्वे आया है जो ओबेरॉय ने दिया है, विवेक ओबेरॉय ने, कि एज पर द रेरा अगर आप देखने को जाए तो बॉम्बे में 1000 से 1500 फ्लैट से ज्यादा नहीं है रेडी फ्लैट, जो कि ओसी के साथ वाला है, ऐसा उसका कहना है। आज ही स्टेटमेंट उसका आया है। तो अगर इस तरह की हालत होगी तो रेडी फ्लैट भी, जो लग्जरियस फ्लैट हो गया या बड़ा फ्लैट हो गया, तो बेचने में कोई इतनी तकलीफ नहीं आएगी। नो डाउट 5-10% रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम कर सकते हैं, लेकिन सेल तो जरूर होना ही है। और आज लोग बिजनेस कर भी रहे हैं, तो आप किसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आगे जाके कोई अच्छा ही होगा और नई सोच के साथ, नए विचार के साथ, नई उमंग के साथ काम करेंगे। यस सर, थैंक यू वेरी मच हरेश भाई। आपके विचार जो आपने सबके साथ शेयर किए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर, ये चीज तो हम सब मानते हैं कि आगे का टाइम बहुत ही खराब है
पर एक चीज जो हरीश भाई ने बोला उससे मैं कहना चाहूंगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जो अपना विल है उसे न्यूट्रिशन देने के लिए वी नीड टू बी मोटिवेट फॉर दैट। आज अपन ने जो ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है वो वही रीजन है कि वी हैव अ मोटिवेशनल स्पीकर विद अस मिस्टर जय वसावड़ा, जो हमें कैसे मोटिवेट होना है और बिजनेस में क्या क्या डेवलपमेंट लाना है उसके बारे में अपने को कुछ उसके इंसाइट्स देंगे। तो प्लीज आई विल हैंड ओवर टू मिस्टर जय वसावड़ा, ही विल गाइड अस हाउ टू गो अहेड। Thank you, Varun Bhai. Thank you for inviting me. Thank you, Area Group, and thank you, Kandivali Real Estate Agent Association for inviting me. हरेश भाई ने बहुत बढ़िया बात की और इससे बढ़िया स्टार्ट हो ही नहीं सकता था कि 18 मार्च उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ और आज की तारीख तक उनकी टीम ने 2000 लोगों को इंटरेस्ट जिनको है वो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, which is a huge thing. So there is no question of any demotivation at all. I believe you will all agree with me कि यहाँ पे 2001 की जय भाई, हाँ जी जय भाई थोड़ा सा इंटरव्यू करो, सॉरी। 2000 तो मेरी एप्लीकेशन आई, इंक्वायरी तो 12000 थी, लेकिन राइटिंग में ऑफिशियली जो हमारा फॉर्म रहता है और हाँ, उसको बुकिंग फॉर्म के अंदर उसको कंपलसरी फॉर्म भर के पेमेंट करना होता है, उसकी 2000 फॉर्म रिक्वायरमेंट हुआ है। टोटल तो 12000 इंक्वायरी थी हमारे पास। तो यहाँ पे मंदी तो कहीं नजर आ नहीं रही है, यहाँ पे कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ, अगर ये इस तरह की शुरुआत यहाँ पे है तो अब मेरा कोई काम यहाँ पे है क्या? यहाँ पे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हरीश भाई का मैडनेस चल रहा है और ये समय ऐसा है जहाँ पे मैं हर किसी को बोलता हूँ कि अब मोटिवेशन मर चुका है, अब बात आएगी मैडनेस की। अगर आप ये मोटिवेशन, अगर ये सिचुएशन में भी अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो समझ लो खतरा है। अब आपके अंदर का जो बेस्ट चीज है वो हम निकालने के लिए बात करेंगे। आई वुड लाइक टू शेयर स्क्रीन, तो कैन यू गाइड मी प्लीज? कैन आई गो अहेड एंड शेयर द स्क्रीन? Yes, sir, you can. श्योर। थैंक यू। तो आज का जो हम लोग ने टॉपिक लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका टाइटल हम लोग ने लिया है हाउ टू विन इन रियल एस्टेट बिजनेस विद प्लान जेड। यहाँ पे 3 पहलुओं की हम लोग बात कर रहे हैं, हाउ टू विन। जैसे कि वरुण भाई ने शुरुआत की कि वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन, तो यहाँ पे जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके सिवा आपके पास कोई और चारा नहीं है। तो जीतना हर हाल में है, ये विन यहाँ पे जीतना है, हमें रियल एस्टेट बिजनेस में जीतना है क्योंकि यहाँ पे हम सब रियल एस्टेट वाले हैं। और प्लान जेड, ये प्लान जेड क्या है? शायद आप हर किसी को एक क्वेश्चन मार्क आता होगा कि व्हाट इज दिस प्लान जेड, राइट? तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि हर किसी ने आपने सुना होगा कि हमारे पास प्लान ए है, अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी तो हमारे पास है जो हमको काम में आएगा। ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे शायद आपका प्लान ए बी सी डी ऑल अल्फाबेट जो हो चुके होंगे और अब आपके पास एक ही प्लान बचेगा जो प्लान जेड है। ये प्लान जेड इज द अल्टीमेट फाइनल प्लान जो आपको यहाँ से बाहर लेके जाएगा। और यहाँ से बाहर हमें इस तरफ नहीं जाना है, हमको यहाँ से बाहर निकलना है, एक स्टाइल में निकलना है। जिस तरह से हरीश भाई ने बात की, 2000 लोगों ने पेमेंट किया है, तो हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी है। ये सिचुएशन में अगर जो लोग अपना अपना काम करेंगे उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दैट हाउ वी हैव कम टू अ प्लान जेड। आई विल टेक यू टू द प्लान जेड इन डिटेल। लेट मी आस्क यू, हाउ इज द जोश? How is the Josh? Hi, sir. Great. So let me start with some good news. Let me start with some facts. क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना, ये करना, और आज की तारीख में लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भाई ये बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है और रियलिटी में तो एक धंधा नहीं हो रहा है। एक डील तो हो रहा था वो भी अटक गया है। लोगों के पास अभी बिजनेस, काम धंधा कोई गारंटी नहीं है, उतने में 1 करोड़ का फ्लैट कहाँ कौन देने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम कुछ शुरुआत कुछ फैक्ट से किया जाए, कुछ गुड न्यूज से की जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी इकोनॉमी के लिए है, वी आर एंटिसिपेटिंग अ गुड मॉनसून। तो जो ग्रेट डिप्रेशन की बात है, वो ग्रेट डिप्रेशन तब हुआ था जब मॉनसून खराब हो गया था वर्ल्ड वाइड।
So we are not anticipating a bad monsoon. So we cheer up that you are expecting a good monsoon, which means agriculture will be good. Agriculture will be good. That will be able to take us forward. So that is point number one, which we all of us have to keep in mind, that monsoon is going to be normal. Very important. Compared to any other industry, your industry have a huge inventory ready to sell. Just go out and sell. आपको बनाना, रुकना, ये करना, उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है. आपके पास रेडी टू सेल प्रोडक्ट है. मैन्युफैक्चरिंग या और अदर लाइन में आज की तारीख में फैक्ट्री खोलो, फैक्ट्री में वर्कर लाओ, ये करो, उसके लिए वेट करना पड़ेगा. आपकी इंडस्ट्री के पास ये चांस है कि आप चाहे तो ये लॉकडाउन में भी काफी सारा माल बेच सकते हो. So that is the one very good news. Even after lockdown, आप चाहो या ना चाहो, हम लोग 7 बिलियन पीपल तो रहेंगे. आप इतना टेंशन मत लो. अगर जब 7 बिलियन पीपल ऑन अर्थ रहेंगे तो उनकी एसेंशियल आइटम में क्या क्या, दे विल नीड रोटी, कपड़ा एंड मकान. आज मकान की कीमत सबसे ज्यादा महसूस की गई है. जिनके पास अपना घर है उन्होंने रियली में आज अपना घर को पहली बार शायद जिंदगी में महसूस किया हुआ है. जिनके पास अपना घर नहीं है, दे आर रियली इन द ट्रबल. तो मेनी पीपल जो बॉर्डर लाइन पे थे, ले ना ले, वो आज अपना मकान लेने के लिए तैयार हो गए हैं. आप लोग उन लोग को सर्विस देने के लिए रेडी हो. इफ नॉट, गेट रेडी. You are going to get a huge market which want to buy their own house. So these are the few starting basic चीज मैं बता रहा हूँ जो फैक्ट है, जो मैंने डिस्कवर नहीं की है. So there are a good chance, there is a good opportunity for you. Only thing is that let's get into the next line. I want to create a perspective. एक भूमिका तैयार करता हूँ जिसकी वजह से आपको समझ में आया. 20th century, that is 1900 से लेके 1999 तक. पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे 1900 से लेके 1950 तक की मेजर इवेंट्स, बहुत ही मेजर इवेंट हुई जो बहुत खराब इवेंट हुई, उसको मैंने लिया है. एक पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ही सारे आजकल फियर में जी रहे हैं. एक सोच लीजिए कि कोई बंदा है तो 1900 सेंचुरी 1900 में बॉर्न हुआ हो, 14 साल की उसकी उम्र हो, और पहला वर्ल्ड वॉर उसने देखा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 अप टू 1918 वो चला. 22 मिलियन पीपल डाइड. अब वो 18 साल का हुआ था, बच गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से निकला, वहां पे स्पेनिश फ्लू चालू हुआ. स्पेनिश फ्लू ने 2 साल चला. 17 से 50 मिलियन पीपल, दैट इज we've been told that half of the population was died because of Spanish flu. अब जहाँ पे वो खत्म हुआ 8-9 साल बहुत अच्छा इकोनॉमी चली और बाद में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया जो 10 साल चला 1939 तक. अब जहाँ ऑलमोस्ट 1932 में ये डिप्रेशन पीक था. खत्म होते 1939 हुआ, जहाँ खत्म हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ जो 1945 में खत्म हुआ. वहाँ पे 75 मिलियन पीपल हैव डाइड. अगर आप देखें उसकी पहली 50 साल की जिंदगी में कितने बड़े नेगेटिव इवेंट फेस किए हैं. शायद दिस कुड बी योर फादर्स, ग्रैंडफादर्स और ग्रेट ग्रैंडफादर. ये उन लोग की जिंदगी की हकीकत है. हम लोग ये इससे वाकिफ नहीं है, हम लोग ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है. But these are the reality and they face it. I want to show you यही सेम टाइम एरोप्लेन ढूंढा गया, ऑटोमोबाइल ढूंढा गया. इन्वेंशन है, these are the inventions. रेडियो 1920 में आया, टेलीविजन 1927 में आया, एंटीबायोटिक जो दवाई है वो 1930 में आई. एक बाजू अगर ये हो रहा है तो दूसरी बाजू इन्वेंशन हो रहा है, दूसरी बाजू ग्रोथ भी इतना ही हो रहा है. दूसरी बाजू जब ये प्रॉब्लम आया है तो उसने हमें मजबूर किया है एक से एक इन्वेंशन करने के लिए. आज ये 3 महीने में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई जगह पे एक एडिसन, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हो चुका है. वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्कवरी में लग चुका है जो कुछ ना कुछ नया ढूंढ लेगा. और ये सब चीज आप जो भी देख रहे हो, उन्होंने हमारी पूरी जिंदगी जीने के तरीके को बदला है.
चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो या एंटीबायोटिक दवा हो। और ये मैंने सिर्फ 5 लिए हैं, ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए। दुनिया रुकी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई, दुनिया रुकी नहीं। The world did not stop then. Why will it stop today? एक कोरोना वायरस आया है, आई अग्री, बहुत डेंजरस है, दुनिया में फैल रहा है, बट ये इतनी भी बुरी हालत नहीं करने वाला है। अगर हम घर पे रहें, हम हमारी सेफ्टी का ध्यान रखें, तो ये आज नहीं तो कल 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में वो कहीं ना कहीं इसका इलाज भी आएगा और we will come out more stronger than ever before. Do you agree with this? If you think that it will not stop, then what is stopping you? क्यों इतनी नेगेटिविटी लेके घूमते हो? क्यों इतने डिफिकल्ट ख्यालों में हो? कितने सारे आप लोगों ने वेबिनार देखे और हर वेबिनार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक बात जरूर कहते हैं, अभी आगे क्या चीज अनसर्टेन है। इज इट समथिंग न्यू? अनसर्टेन तो हमेशा रहता है। बात सही है कि आगे जितना पहले किसको दिख रहा था, आज शायद नहीं दिख रहा है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स मेक समथिंग आउट ऑफ दिस। दिस इज समथिंग डिफिकल्ट टाइम्स बहुत सारी चीज सिखाता है, और ये यहाँ पे जो लोग सीखते हैं, वो आगे बहुत बड़ा काम करते हैं, ये बहुत बड़ा काम करते हैं। Jai bhai, I'll just interrupt between you. Sir, there is some noise, I suppose, from back of your. Is there an input problem or something? Can you see? We have people coming in the chat that there is some. Only your mic was on. So if you can just check, or you can keep your mic closer. Okay, fine. Now is it okay? Thank you, sir. Thank you. Yeah, better. Great, fine. तो ये एक भूमिका है, मैंने भूमिका इसलिए मैं लेकर आया हूँ कि हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा ये सिचुएशन पे। हम लोग जो अनसर्टेन है, आगे बिजनेस होगा कि नहीं, हम लोग ने जो डील किया था वो ब्रोकरेज मिलेगी कि नहीं, बिल्डर क्या करेगा, बायर क्या करेगा, हम लोग को हर बिल्डिंग में नए फ्लैट दिखाने को जाना होगा तो दिखाने को जाने मिलेगा कि नहीं, बहुत सारे सवाल हमने हमारे दिमाग में पैदा करके रख दिए हैं, जो हकीकत होना जरूरी नहीं है। ये आप मान के चलिए। So I want to be sure कि यहाँ पे हमें बहुत सारा चीज करना पड़ेगा अगर हमें यहाँ से निकलना है, और यहाँ से अगर हमको जीत के निकलना है तो डेफिनेटली हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, राइट? लेट मी टेक यू फॉरवर्ड। तो मैंने प्लान Z इन्वेंट किया। प्लान Z जो हम लोग, मैं कोचिंग करता हूँ, उसमें मैं बहुत सारे एरियाज को कवर करता हूँ। आज पूरे ये 6-7 एरिया में से मैंने 2 खास एरिया निकाले हैं। ये 2 खास एरिया इसलिए मैंने निकाले हैं क्योंकि ये अगर एरिया पे आप लोग ने काम किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि व्हेन लॉकडाउन खत्म होगा, आप लोग कोई टेंशन में नहीं रहोगे, आप जीत के बाहर आओगे। और मैं ये इसमें से हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, और हम लोग एकदम डिटेल में जाएंगे जो आपके बिजनेस के लिए होगा, जो यहाँ से आपको जिताने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आर यू रेडी? Yes, sir. Yes. मैंने इसमें से अगर आप देखें तो मैंने 2 चीज बहुत इम्पोर्टेंट निकाली है। आप लोगों को अपने आप पे बहुत बड़ा काम करना है और आपको कस्टमर एरिया में बहुत बड़ा काम करना है। 2 एरिया अगर आपने काम कर लिया लॉकडाउन में, अपने आप पे बहुत बड़ा काम करिए और आपके कस्टमर के एरिया में बहुत बड़ा काम करिए। तो मैं पहले आपसे शुरुआत करूंगा आप पे। What you can do about your own self. So first and foremost, out of many, again here I am talking about 3 aspects of self which is very crucial for you to get out as a winner. The first point is that mindset. जो माइंडसेट आप पढ़ रहे हो, ये अपने आप के माइंडसेट पे आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। ये माइंडसेट क्या कहना है मैं चाहता हूँ, मैं आपको इसमें लेके जाता हूँ। ये माइंडसेट ये ऐसी बात है जो हर राइट नाउ you are seeing surrounded by everybody who is more or less having doubt, question mark, और जिनको ये डाउट क्वेश्चन मार्क है ना, ये आज ये क्या कर रहा है, ये उसको फैला रहा है। जितना कोरोना वायरस जितना जल्दी नहीं फैल रहा है ना, ये डाउट क्वेश्चन मार्क नेगेटिविटी फैल रही है, और इससे हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को।
ये जो भी बंदे हैं, ये जो भी वेबिनार है, ये जो भी व्हाट्सएप है, जो भी जहाँ पे फेसबुक, जहाँ पे देखो वहां से अपने आप को हटा दो। अगर यहाँ से अगर आप अपने आप को हटा लोगे और अपना माइंडसेट तैयार करोगे, तो ये पीरियड आपको, शुरुआत का पीरियड होगा बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ थिंग विल बी अ सर्वाइवल स्टेज। ये सर्वाइवल स्टेज विल बी लाइक बहुत डिफिकल्ट होगा, जहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका माइंडसेट आपको आगे लेके जाएगा। आपका हर बिजनेस डील चैलेंजिंग होगा, लेकिन अगर जिसका माइंडसेट बहुत अपने आप में स्ट्रांग रखा है, अगर अपनी सिस्टम को स्ट्रांग रखा है, तो वो जीतेगा। और जो बंदा डाउट में है, नहीं होगा कैसे करे, सीखा नहीं होगा, अगर यहाँ पे हमने अपने आप को हरा दिया, यहाँ पे हमने अपने आप को हरा दिया, फिर मार्केट में जाके जीतने की कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। और ये आप क्या करोगे, फिर आप दूसरे को भी हराओगे। तो आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, दैट आपको अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट करना है, अपने माइंडसेट को इतना पॉजिटिव करना है, आपके माइंडसेट को इतना तैयार करना है। और ये डिफिकल्ट टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से किस तरह से अपने माइंड को तैयार किया जाए। तो यहाँ से माइंड को तैयार करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके पास पर्पस होना चाहिए। अगर आपके पास पर्पस है, आपके पास अपना वाई है कि क्यों कर रहा हूँ, अगर ये वाई है आपका, तो आपको जो हाउ है ना, ये समय से बाहर कैसे निकलूं, किस तरह की डिफिकल्टी, वो हाउ को बहुत आसान कर देगा। लेकिन जिनके पास अपना कोई मकसद ही नहीं है, जो पर्पस ही नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट महसूस करेंगे। तो ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये लॉकडाउन का टाइम में अपना पर्पस ढूंढना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ये क्यों है मैं। अगर ये एक बार अपने पर्पस ढूंढ लिया, सेकेंड थिंग आपको करना है, यू शुड हैव अ विजन। अगर आपका कोई बड़ा विजन नहीं है, आपने अपना कोई विजन नहीं बनाया है, तो फिर क्या होगा, आप रोज सुबह निकलोगे, कहीं जाओगे और दूसरों की बात लेके घर पे आ जाओगे। लेकिन अगर आपका विजन बना होगा, अगर आपका विजन के रिलेटेड अगर कोई बात नहीं कर रहा है, तो उससे आप दूर हटोगे और आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जिनका भी कोई बड़ा बनने का विजन है, जो भी एक विनर माइंडसेट रखते हैं, और उनके साथ रहोगे, उनके साथ काम करोगे और उनके साथ ही आगे बढ़ोगे। तो आपको ये दो चीज पे काफी बड़ा काम करना है। आपको एक अपना पर्पस ढूंढना है और आपको अपना विजन क्रिएट करना है। विजन में बहुत सारा चीज होता है, विजन लंबा होना चाहिए। आपको मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ, ये लॉकडाउन में एक बंदे ने 60-70 हजार करोड़ रुपया समेट लिया है। 60-70 हजार करोड़ रुपया आप सबको मालूम है। Why he could do it? ये क्यों कर पाए वो? तो रिलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपना कुछ फ्रैक्शनल शेयर बेच के 60-70 हजार करोड़ रुपया कंफर्म ले लिया है। और हम लोग सबने देखा क्यों कर पाए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा विजन था, उन्होंने वो विजन पे रिस्क लिया। कुछ साल पहले उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अगर वो उन्होंने तब किया था, तो आज एक जहाँ पे पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, वहां पे भी उन्होंने 60-70 हजार करोड़ रुपया समेट लिया है। आप क्या कर रहे हैं? आप अगर आज अपना विजन ही नहीं है, तो आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है, तो आप समेटोगे क्या? आप रोज सुबह निकल रहे हो कुछ ना कुछ आशा में, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन में, कुछ ना कुछ होप में, बट ये होप, आशा, एक्सपेक्टेशन कैन नॉट बी योर स्ट्रेटेजी। यू हैव टू हैव क्लियर विजन। अगर आपको रॉकेट को मून पे भेजना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि चलो हम लोग रॉकेट को उड़ाते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा हम लोग देखते जाएंगे कैसे ना कैसे उसको मैन्यूवर करके मून पे पहुंचा देंगे। इस तरह से रॉकेट नहीं उड़ाया जा सकता। वो रॉकेट मून की जगह पे शायद मून पे नहीं पहुंचा, जुपिटर पे पहुंच जाएगा, जुपिटर नहीं पहुंचा तो कहीं ना कहीं तो स्पेस में पहुंच ही जाएगा। अगर इस तरह से हम काम कर रहे हैं, इस तरह से अगर काम कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल है हमारे लिए। आज ये लॉकडाउन का पीरियड आज तक हमें नहीं मिल रहा था हमारे खुद के लिए टाइम। ये टाइम को यूज करके अपना पर्पस ढूंढिए, अपने विजन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए और वो विजन पे पागलपन की तरह से काम करिए। डेफिनेटली यू विल बी रेडी when the lockdown will be open. You will be ready to be offensive and get ready to pounce on every opportunity you get.
So first point is a mindset about the self, which I wanted to tell you that you better work on that. Second thing, I really want every one of you, आप हर किसी को अपना business knowledge, जो business knowledge है उसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा. इतनी और एक 10 times business knowledge बढ़ाना पड़ेगा. I respect, I know आपके पास काफी सारा experience है, आपके पास काफी सारा कुछ आपने काम किया हुआ है, लेकिन जो न्यू नॉर्मल है उसमें 10x नॉलेज नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्टी आएगी. रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर कोई आज की सिचुएशन में कुछ ना कुछ नया करने का सोचेगा. हर कोई जहां पे भी कुछ नहीं होगा वो दूसरी लाइन ऑफ बिजनेस में जाने की सोचेगा, क्योंकि हमें हमारी लाइन में कुछ नहीं दिखता तो हमें आज की तारीख में कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ दो पैसा कमाना है करके कोई ना कोई आएगा. अगर हमारा नॉलेज और दूसरा कोई आता है उसका नॉलेज में बहुत डिफरेंस नहीं है तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा. सेकेंड थिंग, बहुत बड़े बड़े लोग ऑनलाइन बिजनेस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूरा डेटा के साथ काम कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन से काम नहीं कर रहे हैं. तो दे हैव अ लॉट ऑफ डेटा. उनके पास इतने सारे डेटा है, उनको कहाँ मार्केटिंग करना, कैसे मार्केटिंग करना, किससे बात करनी, कैसे नहीं करना, कौन कस्टमर है, कौन कस्टमर नहीं है, क्या है क्या नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. हमारे पास हमारे छोटे बिजनेस में इतना पॉसिबल हम लोग सोचते ही नहीं है. अगर हम सोचते ही नहीं है तो हम उसे एक्वायर करते ही नहीं है. तो आपको आपका बिजनेस नॉलेज सिर्फ एग्जाम्पल, अगर आप कांदीवली, बोरीवली, भदाड़ में आपकी ब्रोकरेज कर रहे हैं, आप समझते हो कि ठीक है मेरे पास काफी सारे हैं, मैं काफी सारे ब्रोकर को जानता हूँ, आपको कोई भी शॉप चाहिए, कोई भी रेसिडेंशियल चाहिए, कुछ भी चाहिए मैं दिला सकता हूँ. लेकिन आप सोचिए जब भी आपके पास एक इंक्वायरी आती है तो आप कितनी चीज एक्चुअली दिखा पाते हैं, कितनी ऑप्शंस उनको दिखा पाते हैं, क्या आप इतने दिखा पाते हैं? आप सोचिए आपका स्ट्राइक रेट कितना है, आपके पास जितनी इंक्वायरी आई उसमें से कितना आप उससे क्लोज कर पाते हैं. क्लोज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते. क्या आपका कहीं ना कहीं बिजनेस नॉलेज, बिजनेस कॉन्टेक्ट, बिजनेस के बारे में पूरी मालूमात है कि नहीं है? बिजनेस नॉलेज इज नॉट आई एम टेलिंग अबाउट दैट आई नो कि इस तरह से प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ. ये प्रोसेस तो हर किसी को मालूम है. अगर आज मैं आपके बिजनेस में नहीं हूँ, कल आऊंगा तो शायद एक महीने के बाद तो मुझे भी ये आपकी प्रोसेस समझ में आ जाएगी. व्हाट विल बी देन डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? अगर ये सिचुएशन में आप अपनी बिजनेस नॉलेज को अगर नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. आपको बिजनेस नॉलेज को बहुत ही बढ़ाना होगा. पॉइंट नंबर 3 पे मैं जा रहा हूँ, स्किल्स. एज अ रियलिटर आपकी क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? डू यू नो दैट? डू यू रियली नो दैट कि व्हाट आर माय स्किल्स, व्हाट स्किल्स आई शुड हैव? अच्छा, सबको लगता है मेरे पास सब कुछ है. क्या मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं? क्या मेरे पास लिसनिंग स्किल्स हैं? क्या मेरे पास सेल्स स्किल्स हैं? क्या मेरे पास टेक्नोलॉजी को यूज करने की स्किल्स हैं? मेरे पास इतनी सारी स्किल्स होनी चाहिए और उसमें से मेरे पास क्या क्या स्किल्स हैं? क्या मैं एक टीम लीडर अच्छा हूँ, टीम बिल्डिंग करने की मेरे पास स्किल्स हैं? क्या मैं खुद ही अकेला कर रहा हूँ? क्या मेरे पास डेलीगेशन करने की स्किल्स हैं? तो आपके पास बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए. आज तक जो चलता था वो नहीं चलेगा, ये बहुत क्लियर है, आपको समझ के रखना है. तो आपको ये टाइम है, पहले शायद कभी भी कोई भी आपके एसोसिएशन ने जब भी ट्राई किया होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम करने का, आप नहीं गए होंगे, आपने सोचा होगा कि इसमें क्या सीखने का, मेरे को तो सब आता है, इसमें तो जो होता है वैसे ही होता है, वो बायर तो ऐसे ही करता है. आप बहुत एजम्पशन की दुनिया में चल रहे थे, धंधा चल रहा था, अब नहीं चलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पर्टिकुलरली ऑनलाइन बिजनेस से अगर डील चैलेंज करना है तो आपकी स्किल्स ही एक बहुत बड़ा हथियार है जो ऑनलाइन के पास नहीं है. आपको पर्सनल रेपो डेवलप करने का बहुत ही बड़ा काम करना पड़ता है, बट वो अगर आप ये सब स्किल्स नहीं है तो आप रेपो बिल्डिंग नहीं कर सकते, आप कस्टमर को समझ ही नहीं सकते, तो वो आप नहीं कर पाओगे. So I want that you have to first ask yourself, what is my mindset? What is my business knowledge? What are my skills? क्या मेरे पास skills हैं? क्या skills होनी चाहिए? अच्छा, मेरे पास I am a good salesman. कितना good हूँ मैं? अगर मैं अपनी गेम का विराट कोहली हूँ, क्या मैं वही लेवल पे हर एक सेल्स के डील को जिस तरह से विराट कोहली ग्राउंड में उतर के गेम खेलता है वही लेवल पे मैं खेल रहा हूँ?
क्या मैं महेंद्र सिंह धोनी के लेवल का ही खेल रहा हूँ? क्या मैं महेंद्र सिंह धोनी के लेवल की टीम को मैनेज कर रहा हूँ? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, तो आपको अपने आप को इम्प्रूव बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो ये स्किल्स पे आपको काफी ध्यान देना है। ये स्किल्स पे अगर आपने काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं बात अटकेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज आउट ऑफ मेनी, आपको 3 चीज खास ध्यान रखने पड़ेगी। दैट इज माइंडसेट, बिजनेस नॉलेज एंड स्किल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड नाउ ऑनवर्ड, जो कल तक थी वो नहीं, आने वाले कल में। जैसे कि बताया कि ऑनलाइन सोशल मीडिया को यूज करके काफी सारा बिजनेस होने वाला है। आपकी कंपनी, आपका बिजनेस कितना विजिबल है ऑनलाइन पे, आप कितना ऑनलाइन के बिजनेस को वैल्यू करते हो, ऑनलाइन पे विजिबिलिटी होने की कितनी महत्वता समझते हो, कितना तैयार करते हो, उसके लिए भी प्रोफेशनल अप्रोच करते हो या फिर रैंडमली जब भी आज मन हुआ तो आपने कुछ लिख के डाल दिया, कुछ ग्रुप में पोस्ट कर दिया, फिर 1 हफ्ता 15 दिन गायब हो गए, फिर वापस कुछ नहीं हुआ तो और एक डाल दिया, इस तरह का रैंडम काम कर रहे हो। तो आपको अपने प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्ट? These are the 3 personal things which self level पे मैं बात करना बता रहा हूँ कि ये आपको करना होगा। Now I will take you to a 3 point, only 3 points on a customer side, which is another very important thing. Do you know who is your customer? Everyone says that I know my customer, but frankly, how deep you have thought about this? मैं अगर ये पूछूं कि आपका कस्टमर कौन है, आपका कस्टमर को कितना अच्छी तरह से जानते हो, आपके कस्टमर कौन है, उसकी पसंद क्या है, उसकी इनकम क्या है, वो कहाँ पे रहता है, वो कैसे सोचता है, उसके आगे आने वाली चैलेंजेस क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, अगर ये सब जानोगे नहीं, क्योंकि द बिजनेस व्हाट यू आर इनटू, कस्टमर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आप भी जानते हो, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ही डज विद यू। अगर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक घर होता है, जो आपके कहने पे, आपके बताने पे, आप जो भी जहाँ पे बताते हो वो बेस पे अगर कस्टमर आपने बिलीव करता है तो वो इन्वेस्ट कर देता है। तो तब इतना बड़ा जब कोई आप पे विश्वास करता है तो आप जो कल तक जितना विश्वास जीत पाए थे वो विश्वास पे ही अगर आप सोचोगे कि लॉकडाउन के बाद भी काम होगा तो नहीं होगा। आपको एक नया लेवल का विश्वास पैदा करना पड़ेगा। तो हु इज माय कस्टमर, ये अगर आपने नहीं जाना तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जैसे आप ये नहीं, जब तक ये नहीं जानोगे आपकी हर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गलत होगी। आपकी हर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप एक तुक्का लगाओगे। एक सामने आपके सामने कॉम्पिटिशन में बड़ी बड़ी कंपनी और डेवलपर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ, जहां पे वो लोग दे आर यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड एवरीथिंग टू नो देयर गेम, दे नो वेरी प्रिसाइजली उनकी हैबिट अपने कस्टमर की क्या है, वो कहाँ पे रहना पसंद करेगा, कहाँ पे नहीं। और हम लोग ने सिर्फ, हमें कोई इंक्वायरी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो 4 5 6 8 10 15 जो भी हमारा डायरेक्ट टच में जो फ्लैट्स होते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं हुआ उसके बियॉन्ड हम दूसरे कस्टमर को घुमाने की कोशिश करते हैं कि यही बढ़िया है। हम कभी भी कस्टमर को जान के उनके तरह का उनको पसंद है ऐसा मार्केट में से लाके देने की कोशिश नहीं करते थे। आज अगर हम लोग यही काम करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी कि हम सिर्फ हमारे ब्रोकरेज की बात सोचेंगे तो नहीं होगा। राइट नाउ इज योर गेम इज डिफरेंट, सो यू बेटर नो योर गेम सो वेल दैट कस्टमर जब तक आप जानोगे तो आप कस्टमर को जानने के बाद आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगा, आपका ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी होगा, आपका सेल्स स्ट्रेटेजी होगा, आपका इन्वेंटरी आपके पास कैसी होनी चाहिए वो आपको मालूम पड़ेगा। अगर मेरे पास, इफ आई एम डीलिंग इन अ वेरी रिच क्लास and I have an inventory which is not so rich, not so luxury, then it is always going to mismatch. If I am dealing with the affordable people and I am having a medium range, again it's not going to work out. So आपका जब भी आप देखो your strike rate, inquiry to sales will आपको बता देगा कि आप कितने अच्छे अपने कस्टमर को जानते हो। So better you know who is my customer. Get into the depth of your customer. The moment you will know this customer, the life will change forever. Things will change forever for you, and then you will have a different game. Now,
Where is my customer? Where is my customer? मैं एक शॉप लेके बैठा हूँ और सोचता हूँ कि कस्टमर ढूंढते ढूंढते आएगा, उसे शॉप घर लेना है तो वो घर लेगा। और आज की तारीख में ये लॉकडाउन में मैं बातें के साथ कह सकता हूँ कि जिनको जो कस्टमर को घर खरीदना है वो भी बहुत सारा एम्पल टाइम मिला है ऑनलाइन जाके सर्च करने के लिए। उन्होंने बहुत सारा फिल्टर करके अपनी इन्वेंटरी खुद की इतनी तैयार करके रखी है, शायद आप में से किसी के पास इतनी इन्वेंटरी भी नहीं होगी। So they are very clear what they want to buy, from where they want to buy. They have back check करके रखा है कौन से डेवलपर के साथ काम करना है, क्योंकि समय मिला है और जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप जहाँ पे आपका कस्टमर है वहाँ पे आप नहीं हो, आपका कस्टमर ऑनलाइन है, आप ऑफलाइन हो, तो आपको वो मिलने वाला नहीं है। आपका कस्टमर क्या ढूंढ रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है, आप कहाँ पे हो, नहीं मिलने वाला है। आपकी ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस थी वो नहीं चलेगी। वो बिजनेस पे अगर आप चलाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि वो बाई लक कुछ ना कुछ ट्रेड हो जाए, कुछ ना कुछ डील हो जाए, बट वो जो बड़ा बनने की जो अगर ख्वाहिश ना होना तो किस तरह से चलेगा। बट अगर कुछ बड़ा बनने की अगर ख्वाहिश अगर आपके दिल में है तो देन यू नीड टू बी देयर वेयर योर कस्टमर इज। आपके कस्टमर जहाँ पे है वहाँ पे आप हो क्या, ये आप चेक करिए। हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर हो, आप ना हो। So I want you to do two things. First is who is my customer. The moment you know who is my customer, you will know where is my customer. Once you know where is my customer, you will know how do I reach to my customer. क्योंकि अब कस्टमर को किस तरह से पहुंचना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। आज की तारीख में लोग पर्सनली शायद मिलना चाहे, नहीं मिलना चाहिए, आप पे कॉन्फिडेंस हो नहीं हो, हैंडशेक हो ना हो, पता नहीं। तो आपको एक रीडिफाइंड वे करना पड़ेगा। आपके साथ मैं मिलना चाहता हूँ एज ए कस्टमर, आपको मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। सो दैट अनलेस वो मैं आपसे बात ही नहीं करने को तैयार हूँ तो आपसे डील कैसे करूँगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कस्टमर को एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस दिया जाए कि भाई it is safe to meet with you, you have taken care of all the precautions and you are going to follow the protocols for at least another 6 to 12 months as far as this corona is there, and how you are going to take it forward. अगर वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है और आप ऑफलाइन ना मिलो ना મને તમે મળો હું અહીંયા ઊભો છું તો એ આવવાનો નથી। So that is very important. आप ये दो चीज जानिए। Third is who is my competitor. Now very important, ये चीज बहुत आजकल पहले की दूसरी भी बात की मुझे मिली और पहले भी मेरे को मिली हुई थी कि हमारे इंडस्ट्री में हम एक दूसरे को अगर पता चले कि एक ही कस्टमर है और उनको अगर हमें पता चले तो हम एक दूसरे को काटने की बड़ी कोशिश करते हैं। अगर ये काटने की कोशिश हम इतनी करेंगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि कस्टमर कहीं और चला जाएगा, जो चले भी जाता है, क्योंकि पहले के जमाने में उसके पास शायद चॉइस नहीं थी, आज उसके पास बहुत सारी चॉइस है। आज मैं घर पे बैठ के गूगल पे डालूं रियल एस्टेट एजेंट्स अराउंड माय एरिया तो मुझे काफी सारी चॉइस मिल जाती है। पहले मैं शायद नीचे उतरूं और जो शॉप मिली, जो रियल एस्टेट पहला मिला उसमें काम कर लेता था। आज की तारीख में हमें कॉम्पिटिटर कौन है, कौन हमारा बिजनेस ले जा रहा है और हम कॉम्पिटिटर को किस तरह से हराए। कॉम्पिटिटर को हराने के लिए आज की तारीख में एक ही रास्ता है कॉम्पिटिटर को जीतना। तो कॉम्पिटिटर को कोलैबोरेटर बनाना होगा, कॉम्पिटिटर को नो लॉन्गर कॉम्पिटिटर रखना होगा। अगर आप उसके साथ कोलैबोरेशन कर पाओगे, अगर कुछ चीज आप शेयर कर पाओगे, तभी जाके आने वाले 6 से 12 महीने में आपका काम चलेगा। सर्वाइवल मोड में आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपना माइंड चेंज करें, कॉम्पिटिटर को कोलैबोरेटर समझे, उसको एनिमी ना समझे। आपको अपॉर्चुनिटी भी शेयर करनी होगी, आने वाले समय में आपको अपना कॉस्ट भी शेयर करना होगा, क्योंकि कॉस्ट कटिंग इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू बी वेरी रूथलेस अबाउट योर कॉस्ट कटिंग। सो हाउ यू विल डू इट? अगर हर बंदा अपनी ऑफिस और सब कुछ लेके बैठा है बट बिजनेस नहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर यू नीड टू कम टुगेदर, शेयर योर ऑफिस, शेयर योर इन्वेंटरीज, शेयर योर कस्टमर्स एंड शेयर योर प्रॉफिट्स।
If this is the mindset, you take it forward, then at your level you will be able to make some inroads. और ये सर्वाइवल मोड जो पहले 6 से 12 महीना होगा उसमें आप बच पाओगे, क्योंकि आपको अभी सिर्फ सर्वाइवल मोड से कैसे आगे निकलूं वो सोचना है। आप सर्वाइवल मोड से आगे निकलने के लिए आपको कॉम्पिटिटर को कोलैबोरेटर बनाना पड़ेगा, दुश्मन को दोस्त बनाना पड़ेगा, और हर किसी को जरूरत है बनाएगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि मैं कंपटीशन में किस तरह से काम कर रहा हूँ। कल तक जिस तरह से मैं अनएथिकल काम कर रहा था, किसी का बिजनेस उड़ा रहा था, आज मैं उड़ाऊंगा तो मार्केट शायद मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। और आज की तारीख में आपको कम्युनिटी सपोर्ट के बिना काम करने में डिफिकल्टी हो सकती है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो सकती थी, जो करोगे तो सर्वाइव सब कोई कर पाएगा, नहीं तो शायद बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपको ये 6 पॉइंट बताने की मैं कोशिश आज कर रहा था कि भाई ये 3 ऑन सेल्फ काम करना है, 3 आपको कस्टमर लेवल पे काम करना है। अगर ये 3 और 3 6 पॉइंट पे अगर हम लोग ने काम किया, अच्छी तरह से काम कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ पा रहे हैं। Now I wanted to ask very important questions. That when you are doing this business, you have very important partner, which is a developer. They are your partner, right? So how you are dealing with them? How you are taking them into this? Because developer की अपनी cost है, developer की अपनी challenges है. You are being a focused people on sales. If you can become an extension, जो आप हो, बट आप इससे ज्यादा अगर कुछ अपने डेवलपर के लिए कर पाओगे और विन विन कोलैबोरेशन कर पाओगे, तो बहुत ही बढ़िया दोनों के लिए होगा, आपके डेवलपर के लिए और आपके खुद के लिए। तो ये आप जब भी हम एज एन एजेंट, जहाँ पे हमारा रोल होता है दोनों के बीच का, तो हमें कस्टमर एज वेल एज सप्लायर ये दोनों को मैनेज करना होता है। तो आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सोचना है कि मैं किस तरह के डेवलपर के साथ काम करूं, किस तरह के प्रोजेक्ट के साथ काम करूं, और उनको किस तरह से मैं वैल्यू एडिशन करके दूं। सिर्फ हम जब भी काम करते हैं तो ब्रोकरेज हमारे दिमाग में रहती है, वो ब्रोकरेज मिलती भी है, लेकिन आज वो ब्रोकरेज के बियॉन्ड मैं क्या कर पा रहा हूँ मेरे डेवलपर के लिए, what value I am adding to my developer. If that is not you are clear about, then it will be difficult that your developer will not support you the way you want. But the thing is that if you can create a plan, and give it to them, as in, like now we were, say example 5 different agents, we were there, now we have come together, और हम लोग यहाँ पे इस तरह का मार्केटिंग करना चाहते हैं और इस तरह का इन्वेंट्री आपको बेचेंगे, इस तरह का आपको कस्टमर ला के देंगे। तो शायद ये हो सकता है कि डेवलपर भी चाहेगा कि ओके चलो लेट्स वर्क टुगेदर, आई विल सपोर्ट यू दिस वे एंड यू डू दिस वे। आई एम नॉट सेइंग सोल सेलिंग एजेंसी, वो तो आप कर ही रहे थे, वो सब तो हो रहा था। अभी आपको कुछ बियॉन्ड दैट सोचना है, आपको बियॉन्ड दैट सोचना है कि भाई पैसे के सिवा क्या मैं कर सकता हूँ। पैसा के लिए तो मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन बियॉन्ड मनी, फॉर योर कस्टमर, फॉर योर डेवलपर, ये दोनों साइड जब आप सोचना शुरू करोगे तो यू विल बिल्ड अ रिलेशनशिप। ये जब रिलेशनशिप आप बनाओगे तब आपका कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग होगा और आपका डेवलपर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपके पास बहुत बढ़िया इन्वेंटरी होगी। आज any broker will have a limited inventory and he is losing out because online, when right now I want to buy house, मैंने मैजिक ब्रिक से लेके हर कोई .com पे जाके काफी सारी इन्वेंटरी को ढूंढ चुका हूँ। अगर ये मैं ढूंढ चुका हूँ तो why will I come to you? I will directly reach out. So what is the reason you are going to create? To create such kind of a reason, you will need the support from your developer. You have to create your plan to impress upon your developer, to take their support, and with together you can reach out, because developer को भी एक दूसरे developers के साथ competition तो रहने ही वाली है, right? How do we reach to customer and win a customer, and rather making customer as our unpaid salesman forever? Because एक happy
हैप्पी कस्टमर, एज वी ऑल नो देयर इज मेनी कस्टमर, एक अनहैप्पी कस्टमर हमारे काफी सारे कस्टमर को तोड़ भी देता है, राइट? ये सिचुएशन में आपको ये देखना है. Another point is that I wanted to tell you, I wanted to touch upon is that I'll interrupt you for a minute. For this, the subject જે તમે અત્યારના કવર કરી રહ્યા છે, હરેશભાઈ will like to share something on that. જે અત્યારના તમે સબ્જેક્ટ લઈ રહ્યા હતા કે ડેવલપર અને બ્રોકરના રિલેશન, હરેશભાઈ will like to share something on that. Can we have હરેશભાઈ for 2 minutes? હરેશભાઈ, can you unmute yourself? हेलो, हाँ जी. हाँ सर. हाँ जी सर. Just you can share your views on this. જયભાઈ, થોડું કઈ કહી શકું? Please go ahead, sir. અચ્છા, આપે બહુ સરસ વાત કરી, ખાસ કરીને માઇન્ડસેટ, બિઝનેસ નોલેજ અને સ્કિલ. આપે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરી અને આ બહુ જરૂરી છે લોકો માટે કે ભાઈ માઇન્ડસેટ બદલાવવું બહુ જરૂરી છે. આપણા માઇન્ડસેટ થી જ ગેમ ચાલતી હોય છે હંમેશા. તો માઇન્ડસેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ લાઈફ. સેકન્ડ, આપે કીધું કે બિઝનેસ નોલેજ જે અત્યારે આપણી પાસે છે એનું 10 ટાઈમ્સ ઇન્ક્રીઝ કરવું જોઈએ. એ પણ આપની વાત એકદમ સહી છે. અને સ્કિલ પણ વધારવી પડશે. હવે આપણે અત્યારે જે ગ્રુપની વાત કરી રહ્યા છીએ, એક ગ્રુપ છે બોરેલી, કાંદિવલી બોરેલીનું ગ્રુપ છે. મારા હિસાબે મલાડ, કાંદિવલી, બોરેલી અને દહીસર આ જે વિસ્તાર છે એમાં આજની તારીખમાં પોપ્યુલેશન છે 45 લાખ થી 50 લાખનું પોપ્યુલેશન છે. હરેશભાઈ, I interrupt કરું છું. પ્લીઝ પોસિબલ હોય તો હિન્દી કરી શકશો, કેમ કે ઘણા सॉरी. जो आपका जो ग्रुप है वो कांदिवली बोरेली का ग्रुप है दहीसर तक का, लेकिन मलाड से लेके दहीसर तक की आज की पॉपुलेशन करीबन 45 लाख के ऊपर है, उससे ज्यादा है. रिकॉर्डेड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं. और मुझे लगता है कि आपकी आप जो सारे ग्रुप मिलके 2000 होगा, 3000 होगा. तो सबसे पहले तो आपको जो एक चैनल पार्टनर्स बनाने की बहुत जरूरत है. आप जो इंडिविजुअल डिवाइड होके जो काम करते हैं और एक दूसरे को मतलब ये बिल्डर ने ऐसा किया तो मैं उसका कम कर दूं, उसका कम कर दूं, उसका कम कर दूं, मैं इससे कम प्राइस में दूं, मैं इससे ज्यादा प्राइस में दूं, ये जो होते हैं इसलिए कस्टमर कंफ्यूज होते हैं. कस्टमर को कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई मार्केट सेम सिनारियो पे चल रही है. ऐसा अभी आप सब ग्रुप में नहीं होते हैं और इंडिविजुअल बात करते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि भाई ये भाई साहब तो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहे हैं, इसीलिए वो कंफ्यूज होते हैं. कोई बोलता है 30% मार्केट कम हो गई, कोई बोलता है 40% कम हो गई. तो सबसे पहले आप सारे ब्रोकर को एक चैनल पार्टनर ग्रुप बना देना चाहिए, एरिया वाइज बनाना चाहिए. मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा मलाड से लेके दहीसर तक सारे ग्रुप एक साथ में बन जाएगा, लेकिन एरिया वाइज चैनल पार्टनर ग्रुप बना देना चाहिए कि भाई 100 ब्रोकर का मिलके ग्रुप बना दिया. आपके पास जो भी इंक्वायरी आएंगी, जो भी बातें आएंगी, वो सारे 100 में शेयर हो जाएगी. जिससे क्या होगा कि 100 लोग का नॉलेज का आपको बेनिफिट मिलेगा कि भाई उसके पास आप जो नहीं चीज जानते हो दूसरा बता सकता है, दूसरा नहीं जानता हो तीसरा बता सकते हैं. और ग्रुप में काम करने से क्या होता है कि कस्टमर में कॉन्फिडेंस क्रिएट होएगा. कॉन्फिडेंस, उसको लगेगा कि भाई बात तो एक सरखी आ रही है, कोई अलग बात नहीं आ रही है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आने के बाद में कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा. और दूसरा, आपको बिल्डर के बारे में इतना कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, बिल्डर के बारे में भी आपको इतना ही जोर लगाना पड़ेगा जितना कस्टमर को परचेज करने में लगाते हैं. बिल्डर के बारे में भी आपकी जो अच्छी बात है उसको बताना चाहिए, उसको समझाना चाहिए और एक विश्वास पैदा करना चाहिए कि नहीं भाई अभी यहाँ फ्लैट लूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं सेफ रहूंगा. उसमें आपका कोई स्वार्थ ज्यादा यूज न करते हुए आपका प्रोफेशनल बिजनेस है, वो बिजनेस को ध्यान में रख के करना है, लेकिन कस्टमर को भी कहीं भी हिंच ना आवे, कहीं भी वो फंस नहीं जाए, उसका भी पूरा ध्यान देना चाहिए. सो मैं जो बात जो बोलने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल बात बोलने जा रहा हूँ और लाइफ में से जो सीखा है वही बताने जा रहा हूँ. सो आगे जाके आप जो इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं उसके बदले में ग्रुपिज्म करो, एक चैनल पार्टनर ग्रुप बनाओ और फिर 5 प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट, 20 प्रोजेक्ट का बिल्डर में आप साथ में मिलके उसके साथ बात करो कि भाई ये प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो एक सुर से बात आएगी तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा. आपने देखा होगा कि शेयर बाजार का मार्केट 42,000 पॉइंट तक चला गया, इंडेक्स चला गया था
और रिवर्स जाते 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 25 तक आ गया और 25 में से 32,000 तक आगे पहुंच गया। तो ये तो माइंडसेट की गेम है ना पूरी। 40 से 42,000 में क्या एक दो महीने में मार्केट इतनी टूट गई, वापिस वो 32,000 पे लेके आया। तो अल्टीमेटली तो आपको भी कस्टमर को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को भरोसा दिलाना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस अच्छी तरह चलेगा, बिल्डर का बिजनेस भी अच्छी तरह चलेंगे। और अभी सब लोग समझ गए कि कॉस्ट सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट बात की है भाई साहब ने, कि कॉस्ट सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एवरीबडी। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमने भी सोच लिया कि 20-25% रेट कैसे कम करना है। पहले ब्लाइंड चलते थे कि भाई परचेज ऑफिसर को बोल दिया जो परचेज करना करो, सेल्स वाले को बोला आप सेल करो। अब वो नहीं चलेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम ज्यादा रहेगा बिजनेस के ऊपर। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा हर आइटम के ऊपर। एक कस्टमर आया तो एक आदमी ने उसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहते हैं, इन बात को समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप बड़े दिखते हैं, कस्टमर डर जाते हैं, क्या बोलते हैं बिल्डर और रियल एस्टेट दोनों एक ही है, हमको फंसा डालेंगे। तो वो विश्वास भी आपको दिलाना पड़ेगा उसको। और ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं होने वाला है, नो डाउट। आपका जो अभी जो लग्जरियस बिजनेस है वो कम 100% होने वाला है, क्योंकि लोगों सोचते कि पहले मेरा रोटी कपड़ा, भाई साहब ने बताया रोटी कपड़ा और मकान थर्ड प्रायोरिटी में आती है। लेकिन मकान की कितनी अहमियत है वो ये 2 महीने में लोगों को बता दिया कि अपना खुद का मकान 4 दीवार के अंदर विद टॉयलेट के साथ में मेरा मकान होगा तो मैं कितना सेफ हूँ, मेरा परिवार कितना सेफ है और मेरे फैमिली कितनी सेफ है। इसीलिए मकान की रिक्वायरमेंट तो 100% ज्यादा होने वाली। और भाई साहब ने बताया कि 1910 से लेकर 1913 में कितना वर्ल्ड में हो चुका, लेकिन साथ में नई शोध भी हो गई, नया विचार भी आ गया था। तो मैंने भी वही कहा कि भाई आगे जाके भी कुछ खराब नहीं होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको नॉलेज बढ़ाना है, स्किल बढ़ाना है, माइंडसेट को मजबूत बनाना है और ग्रुपिज्म में काम करना है। अभी जो इंडिविजुअल काम करते हैं ना, इसीलिए कस्टमर कंफ्यूज है। वो 101% बात है। हर रियल एस्टेट के पास जाएंगे, हर ब्रोकर अलग अलग बात करेंगे तो कस्टमर कंफ्यूज होता है। लेकिन सारे ग्रुप हो जाएगा, शाम को पूरे ग्रुप ने नॉलेज दे देना चाहिए। आज 25 कस्टमर आए थे, आज 100 कस्टमर आए थे, ये लोग ने इतनी ऐसी डिमांड की, ऐसी बातें की, इसकी ये रिक्वायरमेंट है। तो लोगों को भी पता चलेगा कि कस्टमर कितने मार्केट में है और आगे जाके उसको आप सब मिलके कॉन्फिडेंस दिलाएंगे तो 101% मुझे लगता है कि कस्टमर तो आपके साथ बैठना ही है। लेकिन अभी अफोर्डेबल हाउसिंग में जाएंगे, ये बात आपकी पक्की रहेगी। अभी लग्जरियस की बात थोड़ी स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे बिजनेस वापस डेवलप हो जाएगा, सब अपने अपनी तरफ से काम पे लग जाएंगे और कोरोना 1 साल के बाद में भूल जाएंगे। तो आज जो काम करते थे उसकी डबल रफ्तार से लोग काम करने वाले हैं। अभी लोगों को लगा है कि अभी कुछ करना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा। भाई साहब ने कहा कि आपको विजन बना देना पड़ेगा। और अगर मुझे लगता है आप सब लोग विजन लेके चलेंगे और एक चैनल पार्टनर ग्रुप बना के 100 ब्रोकर का, 200 ब्रोकर का, 50 ब्रोकर का एक ग्रुप बनाओ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा इश्यू आएंगे। नो डाउट स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो आने वाली है और स्ट्रगल के साथ में सक्सेस भी होना है, वो अपना ध्येय तो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को आप ध्यान में रहेंगे तो खास करके प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। और धीरे धीरे सब अपनी तरफ से आगे बढ़ेगा ही। और 2 महीने में काफी लोगों ने नॉलेज ले लिया है, वो नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करना है, मार्केट में कैसे लाना है और साथ साथ में कस्टमर को भी बहुत ही डीपली समझना है। अभी पहले क्या था, अपन बहुत ऊपर से बात करते थे, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, उसकी प्रॉब्लम, उसकी इनकम, उसका और सर्विसेज। हाँ, मैं कस्टमर सर्विसेज जो बीच में गैप पहले 10 साल पहले था, सर्विस बहुत देते थे कस्टमर का, अभी सर्विस का गैप बहुत पड़ गया था। तो सर्विस भी देने की इतनी जरूरत है जिसके लिए वो 25 कस्टमर आपको लाके देंगे ग्रुप में। तो सर्विस का भी रेशियो आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको 12 घंटा वो लोग के साथ में टच में रहना पड़ेगा। तब जाके लगता है मुझे सर्वाइव होना इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट है लेकिन इतना भी नहीं है कि बिजनेस नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। Paresh bhai, thank you very much. Jai bhai, you can go ahead. Thank you so much. Harish bhai, Sorry, thank आपको you so much.
No, it's a very important input from the Harish bhai. Thank you so much, Harish bhai. So let's come back to the things that Harish bhai ने जैसा बोला उसमें थोड़ा आगे लेके जाता हूँ कि आने वाले समय में cost is going to be very important, and I am going to talk here. मैं यहाँ पे एक बहुत important एक experience और एक example देने जा रहा हूँ. 1929 में ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ, जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कोरोना खत्म होगा तो शायद ये वर्ल्ड भी एक डिप्रेशन में जा सकता है. लेट्स अज्यूम वर्स्ट एंड वर्क सो दैट उनको कल कोई सरप्राइज ना मिले. मान लिया कि डिप्रेशन होने ही वाला है, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया अटक जाने वाली है, हम तो इसमें भी जीतेंगे. तो इसमें से मैंने एक स्टडी मैंने किया हुआ है और जिसको मैं बताना चाहता हूँ. 1929 में दो कंपनी अमेरिका में थी, फोर्ड मोटर एंड जनरल मोटर. In 1929, Ford Motor was ahead of General Motor in terms of everything. उनका एक टी मॉडल था जो बहुत दिखने में गंदा था, लेकिन उनका मॉडल बहुत अच्छा चल रहा था. अब ये डिप्रेशन का समय शुरू हुआ. ये समय में फोर्ड मोटर का माइंडसेट बहुत फिक्स था, वो चेंज करने को कुछ तैयार नहीं था, वो कस्टमर को रिस्पॉन्स करने को तैयार नहीं था, सिचुएशन को रिस्पॉन्स करने को तैयार नहीं था. वो यही सोच रहा था कि मैं फोर्ड मोटर हूँ और मैं जो बेच रहा हूँ वही सही है. सामने जनरल मोटर ने बहुत सारे चेंजेस उसके मॉडल में किए, उन्होंने प्राइस कट डाउन किया और आपको शायद सरप्राइज होगा, दे हैव कट डाउन देयर कॉस्ट बाय 70%, which is possible. If I ask you today that you better cut down your cost by 70%, आप सोचोगे ये पॉसिबल ही नहीं है, बट समय आपको करा सकता है. Be ready for it and be flexible about it. अगर कॉस्ट कम होता है तो what is your problem? तो आप जब ये सिचुएशन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि आने वाले समय में हम ये सिचुएशन जो सब लोग ही हम सभी ये सिचुएशन में हैं, अब ये सिचुएशन में हम किस तरह से ये सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. हम फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, हम समय के शुरुआत के हिसाब से चल रहे हैं, कस्टमर को नीड को समझ रहे हैं, हमारे डेवलपर की नीड को समझ रहे हैं, और ये जब हम साथ में लेके सबको समझ के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट विल बी अ विनर. अगर ये हमने सोचा कि भाई मैंने तो इतना कल तक इतना मैं बेचता था, इतना मेरे पास कस्टमर है, ये से ये डेवलपर मेरे को जानता है, उनको ये करना ही है, मैंने कल तक उन्होंने मुझे ये दिया है तो आज भी उनको ये देना ही पड़ेगा. अगर ये आपने सोच के रखा है तो ऐसा पड़ेगा वाला हर चीज नहीं होने वाली है, ये लिख के रखिए. सो आर यू रेडी? मैं आपको ये बता रहा हूँ, फोर्ड मोटर एंड जनरल मोटर, आई एम नॉट टॉकिंग अ स्मॉल प्लेयर, आई एम टॉकिंग अ ह्यूज प्लेयर. एंड इन 1939 जब बाय द टाइम ये रिसेशन खत्म हुआ, फोर्ड मोटर हैज लॉस्ट टू जनरल मोटर बाय माइल्स. क्योंकि सिंपल चीज था, जनरल मोटर काफी रिस्पॉन्सिव कंपनी रही, फोर्ड मोटर काफी फिक्स कंपनी रही. दो लोग आगे थे, उनका मॉडल चल रहा था, नो डाउट. बाद में वापस फिर जनरल मोटर हार गई, और कोई कारण रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग दिस फेज person who has responded fast, person who was flexible, who was ready to understand and give the response the way it is required by everyone in the economic, they have been. Another company which I want to talk about is the Procter & Gamble. They have come out as a winner. Again, I am telling you, they have cut down the cost by 70%. उनके जो भी प्रोडक्ट थे, सोप ओपेरा नाम का जो आया ना, सोप ओपेरा जो हम लोग सीरियल को बोलते हैं, दैट इज इन्वेंटेड, और वो शायद शुरू हुआ वो समय पे, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट उनके कुछ सीरियल को उन्होंने बना के बेचने का, मार्केटिंग करने का, एडवर्टाइज करने का शुरू किया, और वो इतनी लंबी चली, उसकी वजह से वो सोप ओपेरा नाम शुरू हुआ. उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इतना प्राइस रिडक्शन करके, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इस तरह से चेंज करके, पैकेजिंग हर चीज को चेंज किया था. दैट इज व्हाई दे हैव बीन इन द ग्रेट डिप्रेशन. दिस इज विनिंग इन डिप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पूरी दुनिया डब्बे में थी, वो लोग ये लोग एक नई विनर होके बाहर आए. तो अगर आप भी विनर बन के आना चाहते हो तो आपको अपना कल भूलना पड़ेगा. You may be a Sachin Tendulkar or Virat Kohli of your game till yesterday, but today is a new day, new game, नया बॉल, नई गेम, जीरो से शुरू करना है. अगर ये हम माइंडसेट लेके चलते हैं, आज की जरूरत, आज की पिच के हिसाब से हम लोग खेलेंगे, आज के सामने वाली टीम के हिसाब से हम खेलेंगे, अगर ये हम लोग ने तैयारी करने को
हम फ्लेक्सिबल होने को तैयार है तो बहुत सारी विनिंग अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आने वाली है, क्योंकि देन यू आर रेडी, आप रिसेप्टिव होते हो। एक बार फ्लेक्सिबल होते हो तो आप रिसेप्टिव होते हो, हर अपॉर्चुनिटी, आपकी हर सेंस तैयार हो जाती है अपॉर्चुनिटी देने के लिए। लेकिन जब आप एक रिजिड एक एटीट्यूड रखते हो ना, तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि आप सुनने ही तैयार नहीं हो, क्योंकि वो आपके लेवल को मैच नहीं कर रही है। आप कल के ख्वाब में जी रहे हो कि ऐसा था इसलिए ऐसा होना ही चाहिए, कल मैं एक चैंपियन था तो आज मैं भी चैंपियन होना ही चाहिए, कल अगर मैं इतने सारे प्लेट देता था, कल मेरा डेवलपर मुझे इस तरह का सपोर्ट कर रहा था तो देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले कल में एक नया बंदा आएगा, नया अप्रोच लेके आएगा, नया कुछ ऐसा लेके डेवलपर को प्रेजेंट करेगा जो आपने सोचा भी नहीं है, तो डेवलपर उससे सपोर्ट करेगा और आपको नहीं करेगा, क्योंकि एवरीबॉडी इज इन बिजनेस। So instead somebody else do it, why don't you do it? तो आप अपने आप को इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार कीजिए कि जिसकी वजह से आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज नाउ इवन सिंगल अपॉर्चुनिटी। इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए आप तैयार हो जाइए, तो आप आने वाले समय में जीतने के लिए बहुत शॉर्ट हो जाएंगे। और लॉकडाउन के समय में कुछ और ज्यादा मत सोचिए लॉकडाउन खुलेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आज की तारीख में अगर आपको कोई ये भी मिल जाए कि जो क्लियर कट बोल सके कि किस दिन अगर लॉकडाउन खुल जाएगा, तो भी बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में हमें ये भी नहीं मालूम है कि लॉकडाउन कभी खुलेगा। We don't even know when the lockdown will open, क्या शेप में हमें छोड़ के जाएगा, हमारी इकोनॉमी को क्या शेप में छोड़ा होगा, लॉकडाउन के बाद क्या होगा, ये सब हमें जब मालूम ही नहीं है तो उसकी पे हम सोचे ही क्यों, उस पे हम सोचे ही क्यों। इट्स लाइक इट इज टेकिंग फ्रॉम गीता दैट यू नो कर्म करना आपके हाथ में है, फल की आशा आपके हाथ में नहीं रख सकते हो। यू कैन नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट बट यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट द वर्क व्हिच यू कैन पुट इन। So right now, if I take another example from a Mahabharata, which is right now everybody is watching, if महाभारत का मैं एक एग्जांपल और लेके आपको बताना चाहता हूँ। महाभारत में जब पांडव को 12 साल के लिए वनवास भेजा गया, उस दिन से वॉर डिसाइडेड हो गई। उस दिन दोनों साइड को पता था कि वॉर होना ही है 12 साल 13 साल के बाद। अब ये 12 और 13 साल में दोनों पार्टी ने किस तरह से तैयारी की, उसके बेस पे ये वॉर जीता गया। 12 साल में पांडव ने जिस तरह से प्रिपरेशन फॉर द वॉर किया, ये प्रिपरेशन का टाइम है, ये लॉकडाउन इज द टाइम फॉर प्रिपरेशन। अगर ये समय को अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपको सर्वाइवल से आगे जाना मुश्किल हो सकता है, आप जीत नहीं पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से पांडव ने अगर वो जिस तरह से नए नए अपनी स्किल्स डेवलप की, अर्जुन ने जहाँ जाके दिव्य अस्त्र जमा की, इस तरह से आप अपने दिव्य अस्त्र कहाँ से ला रहे हो, ये आप सोचो। आप इस तरह से क्या नया ला रहे हो कस्टमर के लिए, ये आप सोचो। अगर ये आप कस्टमर के लिए कुछ नया ला के दे सकते हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट ला के दे सकते हो, तो बहुत बढ़िया हो सकता है। जैसे कि co-working space was a concept. I don't know tomorrow again co-working will work or not work. हो सकता है before corona co-working बहुत बड़ा था, आने के अब co-working शायद कोई जाना चाहे भी नहीं। तो अगेन जो co-working स्पेस में जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस उन्होंने अपनी जगह लेके रखी थी, वो वापस कमर्शियल के लिए, रेंट के लिए, ऑफिस के लिए ढूंढने निकले। क्या आप लोग ने ये सोचा, क्या आप लोग ने इसके लिए तैयारी की कि कितने कोवर्किंग में कितने एंटरप्रेन्योर्स कितनी जगह लेके बैठे हैं? अगर इन्होंने साथ में बाजू में बैठने के लिए तैयारी नहीं है और जाने को तैयार नहीं है, तो वो लोग वापस हमारे लिए रेंट पे ऑफिसेस या आउटराइट ऑफिसेस ढूंढने आएंगे। एग्जाम्पल ये सिर्फ देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तरह का हमें डीप थिंकिंग करके कहाँ पे कौन कस्टमर है, कहाँ पे बैठा है, क्या लेना चाहता है, अगर ये हम स्टार्ट करेंगे सोचना, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। दूसरी बाजू बहुत बड़ी कंपनी जहाँ पे लाइक ऑफ TCS हैव थॉट अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम को बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनाना है, तो हो सकता है कि वो जगह को छोड़ भी दे, आज नहीं तो कल। तो ये बहुत सारे चेंज, डायनेमिकली चेंज आने वाले हैं, जिसको भी आपको इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है वो ढूंढना है। आपके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी कौन सी है, क्योंकि जहाँ पे भी जब भी वो आइसबर्ग जब भी टूटता है तो काफी सारी जगह बनती है, और हर एक जब भी ये टूटता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बनती है। ये अपॉर्चुनिटी जो खींचेगा वो जीतेगा।
तो ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या नया हो रहा है, यहाँ हर चीज जो नई हो रही है उसमें कहाँ मैं अपॉर्चुनिटी निकाल सकता हूँ। अगर मलाड कांदिवली बोरीवली एरिया में 500 एंटरप्रेन्योर्स थे जो यहाँ के WeWork या ऐसी कोई ना कोई कोवर्किंग स्पेस में थे, अगर ये लोग अगर वहां पे जाना रेडी नहीं है तो ये लोग हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में कोई और डिस्टेंस पे ऑफिस भी ढूंढना नहीं चाहेगा, वो अपने घर के आजू बाजू में ऑफिस ढूंढेगा। ये एरिया में वापस ऑफिस की डिमांड हो सकती है, शॉप की डिमांड हो सकती है। Am I ready for that? मैंने ऐसा कभी सोचा क्या मैं इसको कहाँ पे ढूंढूं, ये लोग को किस तरह से अप्रोच करूं। हो सकता है कि वहां पे उनको कॉस्ट बेनिफिट था या जो बेनिफिट था, तो यहाँ पे मैं एक बड़ी ऑफिस को 3 जन के बीच में बेच सकता हूँ। किस तरह से मैं तैयार करूं, तो ये हमें तैयार करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बनाने की जिम्मेदारी एज ए ब्रोकर इज योर। ये क्रिएट करो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट तैयार कर करके कस्टमर तक पहुंचो। ये इस तरह के इनोवेटिव वेज किए जा सकते हैं। अगर ये जो इस तरह के इनोवेटिव वे लेके अगर आप कस्टमर तक पहुंचे, उनको समझाया कि भाई ये सिचुएशन में आपको ये अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूँ, दे मोर देन हैप्पी टू डील विद यू। But are you even thinking on that line? How are you going to approach? What kind of a things you are? What kind of offer होगा? आज वो क्यों गए थे? उनको क्या चाहिए था? अगर मैं ऐसा प्रोवाइड कर सकता हूँ तो ये सब हमें सोचना है। I think if you take this everything together और आप ये सब साथ में सोच के अगर अपना कोई ना कोई तरीका, नया तरीका काम करने का, नया कस्टमर को लुभाने का तरीका, नया प्रोडक्ट ऑफर करने का तरीका, नया बिल्डर और डेवलपर के लिए ऑप्शंस बना के दे सकते हो, तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो मंदी या डिफिकल्टीज ये सब सोचने दो जिनको कोई काम करना ही नहीं, जिनको हिलना ही नहीं है, जिनको विक्टिम माइंडसेट वाले जो लोग हैं, जिनको हमेशा कोई ना कोई कंप्लेंट करनी है, उनके लिए छोड़ दो। लेकिन आप सब लोग एक विनर हो, आप अपने अच्छे एसोसिएशन में मेंबर्स हो, तो आप इट बाय डिफॉल्ट सेज दैट यू आर अ वेरी प्रोग्रेसिव पीपल। नाउ पुश लिटिल हार्ड, इतना अपने आप को पुश करो, कोई आके पुश नहीं करे, अपने आप को इतना और पुश करो और ढूंढो कि यहाँ से इतनी तरह की अपॉर्चुनिटी, एक से एक बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है और ऑफर की जा सकती है। और आज की तारीख में ये अपॉर्चुनिटी को वैल्यू किया जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास माइंड नम हो गया है, तो सोचने का कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। अगर इसमें अगर आपको एक नया आइडिया, नया वे अगर दिखाया जाता है तो वो उसको बहुत बड़ा वैल्यूएशन मिलेगा और वो वैल्यू को रिस्पेक्ट किया जाएगा और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बिजनेस में। बट इसके लिए आपको सोचना है। ये लॉकडाउन के पीरियड में आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम, व्हाट्सएप, वेबिनार से बाहर निकलना है, इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन करना है। मैं क्या नया कर सकता हूँ, किस तरह से ला सकता हूँ, इन लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ, किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ। इसके बारे में जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तो कोई हमारे लिए आके नहीं सोचने वाला। I believe this is what I wanted to tell about winning today in today's time, that it is possible to win, it is possible to thrive. One last thing I wanted to tell you that we are going to have 3 stages. यहाँ से हम 3 स्टेज से पास होने वाले हैं। एक स्टेज होगा सर्वाइवल स्टेज, सेकेंड स्टेज होगा जहाँ पे रिकवरी स्टेज होगा, एंड थर्ड इज द थ्राइविंग स्टेज। राइट? तो पहले आज देयर इज स्ट्रॉन्ग, आज हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं। ये सर्वाइवल हो गया, फिर हम जो बिजनेस खोया है उससे पाने की, रिकवर करने की ट्राई करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, उसको किस तरह से लाया जाए सोचेंगे। आज की तारीख में हमें बहुत बड़ा कमिटमेंट, बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा कॉस्ट ऐड करने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी किसी को, तो नहीं करना है। जितना आप समझ सकते हो उतना ही करो, बट सोचना चालू करो। आपको ये करना है सर्वाइव, रिकवर एंड देन मे बी 9 months, 12 months, when the things are there again, you will be able to thrive. क्योंकि आज जिन्होंने अपना नुकसान कम किया है, जिन्होंने अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके स्मार्ट काम किया है, वो 9 से 12 महीने के बाद रेडी होंगे जब एकदम फिर से मार्केट खुलेगी। क्योंकि हर कोई अटका हुआ है, तो हर किसी को जरूरत भी बाय द टाइम बढ़ जाएगी, लोगों का फैमिली साइज भी बढ़ सकता है, तो जरूरत भी बढ़ सकती है। 2 के 3, 3 के 4 होंगे, और उसकी वजह से फैमिली, आज मैं 1 बेडरूम में रहता तो 2 बेडरूम में जाऊंगा, ये होगा, काफी सारी चीज नहीं निकलेगी।
तो उसके लिए आपको तैयारी आज करनी पड़ेगी। आपको आज से कस्टमर 12 महीने के बाद लेने वाला, जो फ्लैट 12 महीने के बाद लेने वाला है ना, उसके लिए आज से उसको तैयार करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर आपके पास आए और फिर उसको आप दिखाओ। आज आपको कस्टमर को तैयार करना पड़ेगा कि ठीक है 12 महीने के बाद लेना। आज से किस तरह से प्लान किया जाए जो 12 महीने के, क्योंकि आप आज से अगर उसके साथ जुड़ गए हो ना, तो ये बात तय है कि जिस दिन वो तैयार हो गया वो आपसे ही फ्लैट लेगा। बट वो आपको तैयार करना पड़ेगा। आप आज ये ढूंढना चालू करिए कि हु इज पोटेंशियल कस्टमर फॉर टुमारो, नॉट टुडे। टुडे पोटेंशियल कस्टमर एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर, हर कोई उसको छीना चाहता है। कल के कस्टमर को कोई चिंता नहीं चाहता, क्योंकि किसको पता ही नहीं। आप तैयार करिए कल का कस्टमर, समझिए, इनसे बात करिए, कैसे किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करके, किस तरह से लोन लेके, किस तरह से उनकी क्या क्या बात को हम तैयार करें। तो ये हो सकता है कि आपकी एक पाइपलाइन रेडी हो जाए। आपकी पाइपलाइन अगर स्ट्रॉन्ग रह गई कि भाई ये बंदा 6 महीना, ये 9 महीना, 12 महीना, 15 महीने के बाद फ्लैट लेने वाला है, तो हो सकता है कि इस तरह से जब ये दुनिया रेडी हो, आपके पास 10, 15, 20, 50, 100 कस्टमर ऐसे हो जो एग्जैक्टली रेडी हो, और आज से आपने उसके साथ वो तरह का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के रखा हो, जिसकी वजह से जब उसको लेना है वो सोचे कि भाई लूंगा तो आपसे लूंगा। अभी आपको कस्टमर की सोल सेलिंग एजेंसी लेनी है। कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग you have to take a soul buying agency of a customer, individual customer. वो कैसे किया जाता है? This is how it can be done. Soul buying कैपेसिटी तैयार करो। सिर्फ फ्रेंड, रिश्तेदार, जान पहचान वाले से मत डिपेंड करो। इस तरह से फाइंड आउट करो वो पोटेंशियल, ये नीड पैदा करो कि भाई इस तरह से होगा तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि 12 से 18 महीना जो सब लोग बोल रहे हैं will be a good time for people who want to buy a house for their use. ये हो सकता है कि one of the best time, क्योंकि हो सकता है कि जब दुनिया वापस नॉर्मल हो जाए तो आज जो रेट में फ्लैट में, आज अगर आप तैयार करना चालू करेंगे, आज उनका फाइल बिल्ड होगा, आज उनको तैयार करेंगे, उनको लोन अप्लाई होगा, ये होगा, तो जिस दिन 6 महीना 12 महीने के बाद तैयार होगा, कोई शक नहीं है, तो जो भी करेगा आपके थ्रू करेगा। तो सोल बाइंग एजेंसी is the new concept. I want to give it to you today. If you can create and you can work upon it, you will remember me after 12 months. This is the one thing which I have invested today. This is a free investment of time. There is no investment of money. You don't have money to invest, but you have a lot of time to invest. You have time to come and talk to me. जय, किस तरह से तेरा क्या प्लान है? तुम अगर दूसरा फ्लैट घर ये लेना चाहता है, किस तरह से लेना चाहता है, मैं किस तरह से तेरे को प्लान करके देता हूँ, किस तरह से लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। मेरी एस्पिरेशन तो बहुत ही, हर किसी की एस्पिरेशन है, तो मेरी एस्पिरेशन को समझने का आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर आप ये टाइम मेरे साथ आज इन्वेस्ट करोगे तो मैं 6-12 महीने के बाद जब भी मेरी भी फाइनेंशियल सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, दुनिया की होगी, तो कहाँ किससे मिलूंगा? आपसे ही लूंगा। Will it be worth the investment? आज के पास ना, आपके पास ज्यादा कस्टमर है, ना पैसा खर्चने के लिए है, ना पैसा खर्चना भी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? आपका टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको आपकी पाइपलाइन रेडी करनी चाहिए। अगर ये इस तरह से आपने अपनी पाइपलाइन आने वाले 6 से 12 महीने के लिए तैयार करके रखी, तो ये पाइपलाइन के बेस पे जाके आप अपने डेवलपर्स से भी बात कर सकोगे कि सर आई एम एक्सपेक्टिंग 20 फ्लैट्स इन अनदर 3 months. Now, if you can tell a developer that मैं आपके प्रोजेक्ट का 20 फ्लैट आने वाले 3 महीने में बेचूंगा, based on your investment of last 6 to 12 months, can you imagine your ability to deal with your developers, the respect, the support, everything, all terms you will get. Soul buying agency is the concept which you have to work right now and start working, start finding out who is the potential customer, किस तरह से लेना चाहिए, और this is what we are teaching in Plan Z. The Plan Z is all about this, that we don't have money, we don't have customer, we don't have this, that, all kind of a problem we have, but still we want to grow and grow big way. This is the way you can go. With this, I would like to end my session today with this concept. शुरू करो आज से, तो 6 से 12 महीने के बाद you will be thriving like anybody. With that, I would like to thank you everyone for being with me.
and giving me this opportunity and investing your valuable time. I hope this is of your work, इसमें से कुछ काम में होगा और इससे आप आगे बढ़ पाओगे. Thank you so much. Thank you, Jai Bhai. Thank you very much. It was really a good session. People have enjoyed a lot. सर आपके ये सारे सेशन से मेरे को एक ही सर एक डायलॉग याद आ रहा है. दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक विनर रहता है, एक लूजर रहता है. पर this I can say every loser has a time to get win one time. Loser and winner is for the day, not forever. Yes sir, yes sir. So if you are a loser today, you have again come back tomorrow and be a winner. Absolutely, absolutely sir. But you can be a forever a loser if you have a victim mind. If you think that I'm a loser, whatever you think, you are thinking you are a winner, you are right. If you are thinking you are a loser, you are right. Is what you are thinking is right. Yes sir. Sir, thanks a lot for your such a valuable time and insight. We have Thank you so not much. received any more or less all the things are covered. आपने maximum सारे prospect cover किए हुए हैं. तो Any questions? If anybody has, please. Most welcome. so we don't have till now any questions on the chat box. Yeah. By the time सिर्फ एक announcement sir करना है regarding our next session. With association with Area Group and RIC Association, we have organized one entertainment event tomorrow. Especially Haresh Bhai and Jai Bhai, you are also invited for the same. This session we have an unplugged night with Dilesh Doshi. Just to overcome with all this scenario and all this stress time, we have organized an unplugged night with this Dilesh Doshi tomorrow on Facebook Live. You people can log into the MSpace Facebook page and enjoy the night. And the link has been sent to the chat box. So if anybody is interested, they can copy from there. Haresh Bhai, really thank you for giving your insight. People have काफी कुछ आपने जो बोला उससे काफी कुछ घर पे लेके जाएंगे. Thank you very much for giving your time. Wish you all the best to all of the real estate broker. और मैं चाहता हूं कि आप सबकी जो इच्छा है उससे ही ज्यादा सब बिजनेस पाए. और जय वसाड़ा ने जो गाइडलाइन दी और उसने जो अपना अनुभव और उसके बाद में अपने एक नॉलेज दिया उसके बारे में जय वसाड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, और sir. सबको Thank you, very much, sir. sir. Thank you, Thank sir. you so much, sir. Thanks one again, Mr. Vijay Thanks all. Mukhi, President Area Group, and Kalpesh Bhai Valya, Secretary of RIC Association, for giving us this opportunity to get this session done. We are always with you in space. We are always with you. You are welcome. So Thank you, Varun Bhai. Area is Thank you, very sir. fortunate that you are hosting this and we are able to join you. Thank you, Jai Bhai, for your beautiful insight, how we can promote and how we can concentrate on the coming days. And special thanks to Haresh Bhai for supporting each and every channel partner during this event and for the coming days. Thank you very much on behalf of Area Group. Thank you to RIC. We are there together and we'll work together. Thank you. absolutely, sir, absolutely. Once again, Jai Bhai, very thank you to giving us such an insight. It was really a thoughtful and a good learning for everyone. Thank you so much, Varun Bhai, for inviting me. Thank you so much, Kalpesh Bhai and Vijay Bhai, for giving me this opportunity. Thank you so much. And thank you everyone Jai Bhai. for being there. Thank you, Haresh Bhai, for your special input. That was really very important. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Everyone stay safe and we'll have a wonderful time in future. Thank you. Great, sir. Tomorrow, all can enjoy the Unplug Entertainment Night at 10 p.m. on Facebook MSpace page. So all are invited. I'll send you the link. Link is already there on the chat box. If at all anybody want the link, they can contact us. Sure. We'll go ahead. We'll join you in the night.
Definitely. will. Thank you. Okay. Yeah, done. Great, Totally. sir. Thanks for the Thank you. session. We'll end up over here. Thank you. Oh, thank you, sir. Thank you. Okay. Okay.